morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 4. Dear students, our chapter number 4 is clothes we wear. In our previous video we read this chapter complete, and today we will revise this chapter, difficult words and word meanings. So let's start. Our first difficult word is protect. 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 Second, farmer. 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 Third is different. 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 Fourth, season. 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 Fifth है according. 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 Sixth है materials. 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 Seventh है obtained. 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 Eighth है leather. 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 Ninth है tradition. Traditional. Sorry, traditional. 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 Tenth है shopkeeper. 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 Now first is protect. 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 Second is farmer. Farmer. Third is different. Different. Fourth is season. Season. Fifth है according. According. Sixth है material. Materials. 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 Seventh है obtained. 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 Eighth है leather. 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 Ninth है traditional. 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 और 11th है shopkeeper. Shopkeeper. Now our first word meaning is iron. Iron. Iron means loha. Second, tailor. Tailor. Tailor means darji. Third is traditional. Traditional. Traditional means paramparagat. Fourth is uniform. Uniform. Uniform means वर्दी. Fifth है clothes. Clothes. Clothes means कपड़ा, कपड़े. और सिक्स्थ इज प्रोटेक्ट. Protect. Protect means बचाव. Seventh is season. Season. Season means मौसम. Eighth is material. Material. Material means सामान. Ninth is thread. Thread. Thread means धागा. Tenth है silkworm. Silk. Silk. Worm. Silkworm मीन्स रेशम कीड़ा. रेशम का जो कीड़ा होता है उसे बोलते हैं सिल्क वॉर्म. फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट क्या है? आयरन. IRON. आयरन मीन्स लोहा. सेकंड है टेलर. TAILOR. टेलर मीन्स दर्जी. थर्ड है ट्रेडिशनल. TRADITIONAL. ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत. फोर्थ है यूनिफॉर्म. UNIFORM. यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी. फिफ्थ है क्लोथ्स. CLOTHES. क्लोथ्स मीन्स कपड़ा. सिक्स्थ है प्रोटेक्ट. PROTECT. प्रोटेक्ट मीन्स बचाव. सेवन्थ है सीजन. SEASON. सीजन मीन्स मौसम. एट्थ है मटेरियल. MATERIAL. मटेरियल मीन्स सामान. नाइन्थ है थ्रेड. THREAD. थ्रेड मीन्स धागा. टेंथ है सिल्क वर्म. SILKWORM. Silkworm means रेशम कीड़ा. So dear students, I hope you understand and these difficult words and word meanings. You learn completely these word meaning and difficult word with spelling. Thank you. Good morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. As you know, we revise our syllabus for SA1 exam. So today we revise chapter number 7, bones and muscles. Name of our chapter is bones and muscles. So let's start. In previous
class, we revise word meaning and difficult word of this lesson number 7. So and today we revise question answer of lesson 7. Question number 6, that is question answer of your textbook, lesson number 7. Question A, what is a skeleton? What is the skeleton? जो skeleton है वो क्या होता है? What is the skeleton? skeleton क्या होता है? कंकाल क्या होता है? Answer is the framework of bones in our body is called skeleton. I repeat again. The framework of bones in our body is called skeleton. जो फ्रेमवर्क है, जो एक ढांचा है हमारी हड्डियों का, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, वो क्या कहलाता है? स्केलेटन. जो बोन्स के द्वारा हमारे बॉडी का एक शेप बना हुआ है, जो ढांचा बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ ए जॉइंट? जॉइंट क्या होता है? आंसर इज़ द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ नोन एज ए जॉइंट. वो जगह जहाँ की दो बोन्स, दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट कहते हैं. आई रिपीट अगेन, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ नोन एज जॉइंट. वो जगह जहाँ दो बोन्स मिलती हैं वो जॉइंट कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन सी, हाउ डू मसल्स एंड बोन्स हेल्प अस? मसल्स और बोन्स हमारी मदद किस तरह से करती हैं? आंसर इज़ मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प अस टू मूव. मसल्स और बोन्स जो हैं वो एक साथ काम करती हैं और हमारी हेल्प करती हैं किसमें? मूवमेंट करने में. सिंपली सिर्फ बोन्स अगर हमारी बॉडी में रहेगी तो हम मूव नहीं कर सकते, और सिर्फ मसल्स की हेल्प से भी हम मूव नहीं कर सकते. तो दोनों अगर एक साथ वर्क करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. तो आई रिपीट दिस आंसर, मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प अस टू मूव. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन? स्केलेटन के क्या फंक्शन है, क्या कार्य हैं? आंसर इज़ फंक्शन ऑफ स्केलेटन्स आर, फंक्शन ऑफ स्केलेटन आर, पॉइंट में लिखोगे आंसर. फर्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक. क्या करती है? हमें सीधा खड़ा होने में हेल्प करती है और चलने में भी हेल्प करती हैं. आई रिपीट अगेन, हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक. सेकेंड है गिव शेप टू आवर बॉडी. हमारे शरीर को एक शेप देती है, एक आकार देती है. थर्ड इज़ प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स. प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स, जो अंदर के नाजुक हिस्से होते हैं बॉडी के, उनको, उनकी रक्षा करती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज़ पोस्चर? पोस्चर क्या है? व्हाट काइंड ऑफ पोस्चर इज़ गुड फॉर आवर बोन्स एंड मसल्स? और किस तरह का पोस्चर हमारी बोन्स और मसल्स के लिए अच्छा है? तो आंसर लिखोगे, पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन वी सिट. पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और वॉक इज़ नोन एज पोस्चर. जब हमारे बॉडी का वो पोजीशन जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या वॉक चलते हैं, वो हमारा पोस्चर कहलाता है. पोस्चर मीन्स होता है हिंदी में आसन. हमारे बॉडी का वो पोजीशन जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या चलते हैं, क्या कहलाता है? पोस्चर कहलाता है. और सही पोस्चर क्या है हमारी बॉडी के लिए, मसल्स और बोन्स के लिए, जो सही हो? An upright and straight posture is good for our bones and muscles. एक upright और straight posture जो है good है, अच्छा है किसके लिए? bones और muscles के लिए. Next we will do the book exercise of lesson 7. So question number 1, choose the correct words from the box to fill in the blanks. ये box given है, इसमें different word दिए हुए हैं, इसमें से choose करके हमें fill-ups complete करना है. First is A is
आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड डैश। जो हमारा शरीर है वो किससे बना हुआ है? हड्डियों से, बोन्स से और किससे? स्केलेटन से, पोस्चर से, शेप या जॉइंट या मसल्स। तो बोन्स और मसल्स से हमारा जो बॉडी है वो बनी हुई है, बोन्स और मसल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्या आएगा? मसल्स। तो यहाँ राइट कर दो 1 नंबर एंड हेयर यू राइट मसल्स। सेकेंड है बी है बोन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द। बोन्स जब हड्डियाँ आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? स्केलेटन, पोस्चर, शेप या जॉइंट। तो बोन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन। क्या बनाती हैं? स्केलेटन बनाती हैं। यहाँ राइट करोगे स्केलेटन और हेयर यू राइट नंबर सेकेंड। सी इज़ द स्केलेटन गिव डैश टू आवर बॉडी। जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को क्या देता है? पोस्चर देता है, शेप देता है या जॉइंट देता है। तो स्केलेटन हमारी बॉडी को शेप देता है। क्या देता है? एक शेप देता है। यहाँ राइट करोगे शेप, SHAPE शेप। हेयर यू राइट नंबर 3। D is dash is the place where two bones meet। वो कौन सी जगह है जहाँ दो बोन्स, दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं? क्या होती हैं? हमारे सभी ऑप्शन फिल हो चुके हैं। Here two options are remaining. First is posture and second is joint। तो कौन सी जगह है जहाँ पे दो बोन्स मीट होती हैं? तो जॉइंट इज़ अ प्लेस। क्या आएगा वहाँ पे? जॉइंट आएगा। फिल हेयर जॉइंट इज़ द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। क्या फिल करोगे? जॉइंट फिल करोगे और यहाँ पे डालोगे नंबर 4 एंड E इज़ एन अपराइट एंड स्ट्रेट डैश इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स एंड मसल्स। एक अपराइट और स्ट्रेट क्या ज़रूरी है अपनी हेल्दी बोन्स और मसल्स के लिए? तो अपराइट एंड स्ट्रेट पोस्चर। क्या आएगा यहाँ पे? पोस्चर। पोस्चर राइट करोगे एंड हेयर यू राइट नंबर 5th POSTURE पोस्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। ए इज़ बोन्स आर सॉफ्ट टू टच। जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती है टच करने में। तो नो, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। राइट करोगे F हेयर। फॉल्स राइट करो या F राइट कर सकते हो आप। बोन्स जो होती हैं हमारी कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं बेटा टच करने में। ओके, नेक्स्ट है बी, मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प आवर बॉडी पार्ट्स मूव। बोन्स और मसल्स क्या करती हैं? एक साथ काम करके हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। बोन्स और मसल्स एक साथ वर्क करके हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर सी, जॉइंट इज़ द प्लेस वेयर टू मसल्स मीट। जॉइंट वो प्लेस है जहाँ दो मसल्स आपस में मीट करती हैं। नो, तो मसल्स की जगह अगर आपका क्या होता? बोन्स राइट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होती, बट मसल्स नहीं मिलती, बोन्स मिलती हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। क्या राइट करोगे? F, जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू मसल्स मीट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा D, पोस्चर इज़ द पोजीशन ऑफ बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और वॉक। पोस्चर जो है वो बॉडी का वो पोजीशन है जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या चलते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। यस, पोस्चर इज़ द पोजीशन व्हेन वी सिट, स्टैंड एंड वॉक। ओके, नेक्स्ट है हमारा E, एन अपराइट पोस्चर इज़ हार्मफुल फॉर बोन्स। जो अपराइट पोस्चर है वो बोन्स के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है। नो, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अपराइट पोस्चर सही राइट पोस्चर है बोन्स और मसल्स के लिए। तो राइट करोगे यहाँ पे फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। राइट हेयर F। ओके डियर स्टूडेंट, रिवाइज द क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 1 fill-ups and true false of lesson 7 in science and learn them properly. Thank you. Have a nice day.
Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class 2nd. So today we revise lesson number 6 in English reader. Name of our lesson is the Sant and the Scorpion. संत मीन्स होता है साधु एंड स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू. एक बिच्छू और संत की स्टोरी इस चैप्टर में गिवन है. द संत एंड द स्कॉर्पियन. So let's start. First I taught the summary of this lesson. In this chapter the story of Sant and Scorpion is given. एक संत और साधु और स्कॉर्पियन की बिच्छू की स्टोरी दी हुई है, जिसमें एक संत जो है बहुत ही दयालु था. उसको लाइफ बहुत सिंपल लाइफ जीता था और किसी से उसको किसी चीज़ की कोई भी मदद दूसरों से उसको स्वीकार नहीं थी और वो दूसरों की मदद खुद करता था. बच्चों को शिक्षा देता था एंड गरीबों को जब ज़रूरत हो वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचाता था. एक दिन वो स्नान कर रहा रहता है इन अ रिवर. तब वो देखता है कि एक स्कॉर्पियन पानी में डूब रहा था. तो वो उसको अपने हाथ से पकड़ के निकालता है. निकालते समय वो उसको काट देता है. तो जैसे वो काटता है तो पेन होने पर वो उसको वहीं गिरा देता है. फिर वो तड़पने लगता है वो बिच्छू स्कॉर्पियन. फिर वो दूसरी बार फिर ट्राई करता है कि मैं इसको बचाऊं, लेकिन दोबारा काटने पर फिर दोबारा उठाने पर फिर वो स्कॉर्पियन उसको स्टिंग करता है, काटता है. तो उसके बाद उसने कुछ सोचा. वो एक उपाय सोचता है और एक लॉन्ग स्टिक लेता है और स्टिक में वो उसको पकड़ के बिच्छू को पानी से बाहर निकाल देता है. इस तरह से स्कॉर्पियन की लाइफ सेफ हो जाती है. और ये सब जो हो रहा होता है, एक विजिटर इस चीज़ को देख रहा रहता है और लास्ट में जब वो स्कॉर्पियन बच जाता है तो वो संत से क्वेश्चन करता है कि वाई डिड यू सेव द स्कॉर्पियन व्हेन इट स्टिंग यू ट्वाइस. आपने उस स्कॉर्पियन को क्यों बचाया जबकि उसने आपको 2 बार काटा. तो वो कहता है कि वो स्कॉर्पियन का नेचर है कि वो डंक मारता है. डंक मारना, टू स्टिंग अनदर, दूसरों को डंक मारना उसका नेचर है. उसी तरह हमारा ह्यूमंस का नेचर है कि दूसरों पर दया करें, उनको किसी चीज़ की जो भी हमसे हो सके वो उनकी मदद करें. तो अगर वो स्कॉर्पियन जानवर होते हुए भी अपने नेचर को नहीं छोड़ रहा है तो हम इंसान होकर उस नेचर को क्यों छोड़ दें. तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि कोई हमारे साथ अगर बुरा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसकी तरह वैसे ही हो जाए. जो हमारा नेचर है हमें वो करना चाहिए, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है जो भी कर रहा है और हम करके वो हम अपना काम कर रहे हैं. सो नेक्स्ट वी स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. एक्सरसाइज ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं आपको. फर्स्ट है हमारा द संत ऑलवेज पुट ऑन डैश क्लोथ्स. जो संत था वो हमेशा कैसे क्लोथ्स पुट करता था, वाइट, रेड, सैफ्रॉन या पर्पल. तो वो पुट करता था सैफ्रॉन क्लॉथ. सेकंड है हमारा वाइल बाथिंग द संत सॉ अ डैश. जब वो संत बाथिंग नहा रहा था तो उसने क्या देखा, स्कॉर्पियन, स्नेक, फ्रॉग या फिश. तो उसने किसको देखा, स्कॉर्पियन को. टिक ऑन ऑप्शन ए स्कॉर्पियन. थर्ड है हमारा द स्कॉर्पियन स्टंग द संत. स्कॉर्पियन ने संत को काटा. सम, थ्राइस, ट्वाइस या नन. उसने उसको कुछ बार काटा या थ्राइस 3 बार काटा, ट्वाइस 2 बार काटा या एक भी बार नहीं काटा. तो संत को ट्वाइस बार 2 बार काटा था. तो टिक ऑन ऑप्शन सी ट्वाइस. फोर्थ है हमारा द संत सेव द स्कॉर्पियन बाय यूजिंग अ. संत ने उस स्कॉर्पियन को किसकी हेल्प से बचाया, क्लोथ की, कॉपर की, स्टिक की या लीफ की. तो उसने एक स्टिक का यूज़ करके स्टिक लेकर उसकी हेल्प करी और उसको बचाया. तो टिक करोगे ऑप्शन सी, दैट इज़ स्टिक. ओके, ऑप्शन सी स्टिक.
बी है हमारा फिलअप्स, फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। हेयर ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, दोनों में से एक जो सही है वो हमें फिल करना है। फर्स्ट है हमारा द संत लिव्ड ए डैश लाइफ, जो संत था वो कैसी लाइफ जीता था, सिंपल या लग्जरी, तो फिल करोगे सिंपल। क्या फिल करोगे यहाँ पे, सिंपल। सेकेंड है हमारा ही वॉज गिवन डैश बाय द विजिटर, वो विजिटर्स को क्या देता था, मनी या गुरु दक्षिणा, तो वो विजिटर्स को गुरु दक्षिणा देता था। क्या देता था, गुरु दक्षिणा, तो फिल हेयर गुरु दक्षिणा। थर्ड है हमारा द संत यूजिंग ए स्टिक पुट द स्कॉर्पियन एट द डैश प्लेस, संत जो था वो एक स्टिक का यूज़ करके क्या करता है, स्कॉर्पियन को कैसे प्लेस पे डालता है, वेट या सेफ, गीले जगह पर या सेफ जगह पर, तो वो डालता है उसको सेफ प्लेस पे। कैसे प्लेस पे, सेफ प्लेस पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा द क्रिएचर्स कैन नॉट डैश अप दियर नेचर, जो क्रिएचर है वो क्या नहीं करते, अपने नेचर गिव नहीं करते या पुट नहीं करते, तो कैन नॉट गिव अप दियर नेचर, वो अपने नेचर को नहीं छोड़ते, कैन नॉट गिव अप दियर नेचर। क्या फिल करोगे यहाँ पे, गिव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज़ ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टी राइट करना है हमें ट्रू स्टेटमेंट के लिए, एफ राइट करोगे फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट है हमारा द संत ऑलवेज एक्सेप्टेड एवरीथिंग, जो संत था वो हमेशा सब कुछ एक्सेप्ट करता था दूसरों से, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, वो कभी भी किसी से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता था। राइट करोगे यहाँ पे फॉल्स, एफ। सेकेंड है हमारा ही डिड नॉट ट्राई टू सेव द स्कॉर्पियन, उसने स्कॉर्पियन को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स, राइट हेयर एफ। थर्ड है हमारा द स्कॉर्पियन स्टंग ट्वाइस, स्कॉर्पियन ने 2 बार उसको काटा, तो दिस इज़ ट्रू, ट्री लिखोगे यहाँ पे। फोर्थ है हमारा द संत इग्नोर द स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, संत ने उसके स्टिंग को, उसके काटने को इग्नोर किया, तो यस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, राइट करोगे टी। नेक्स्ट है बेटा हमारा वर्ड मीनिंग ऑफ लेसन 6। फर्स्ट इज़ वोर, WORE, वोर, पुट ऑन यानी डालना, पहनना, पुट ऑन। सेकेंड सेफ्रॉन, ऑरेंज। थर्ड इज़ अल्म्स, डोनेशन, देना, ALMS, अल्म्स, डोनेशन। फोर्थ इज़ फीड, गेव, फूड, भोजन देना। फिफ्थ नीडी, पीपल हु आर इन नीड, जो लोग जिनको ज़रूरत हो ऐसे लोग। चैंटिंग, रिसाइटिंग, जप करना यानी जप जो करते हैं ज्ञानी वो रिसाइटिंग होता है, चैंटिंग यानी रिसाइटिंग। सेवेंथ है स्कॉलर, अ लर्न मैन यानी स्कॉलर जैसे पंडित, अ लर्न मैन। 8 है स्ट्रगलिंग यानी ट्राइंग, बार बार प्रयास करना। 9th है ड्रॉप, थ्रू, फेंक देना। ब्लीडिंग, ब्लड कमिंग आउट यानी खून बहना। मर्चीफुल, काइंड, दयालु। 12th है हमारा ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, 2 बार। नेक्स्ट है बेटा हमारा एक्सरसाइज डी, दैट इज़ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द संत लीव, जो संत था वो किस तरह की लाइफ जीता था, तो आंसर लिखोगे द संत लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, जो संत था बहुत सिंपल लाइफ जी रहा, द संत लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ। सेकेंड है हमारा क्वेश्चन सेकेंड, हाउ डिड द संत फर्स्ट ट्राई टू सेव द स्कॉर्पियन, संत ने पहली बार उसे कैसे स्कॉर्पियन को, बिच्छू को बचाने की कोशिश करी, तो आंसर होगा बाय पिकिंग अप विथ हैंड, बाय पिकिंग अप विद हैंड, अपने हाथों से पकड़कर, बाय पिकिंग अप विथ हैंड, हाथों से पकड़कर। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, वाई वॉज द स्कॉर्पियन ड्रॉप्ड ट्वाइस, ड्रॉप ट्वाइस, वो स्कॉर्पियन बिच्छू 2 बार क्यों गिरा, आंसर होगा बिकॉज ऑफ देयर बेसिक नेचर ऑफ स्टिंग, बिकॉज ऑफ देयर बेसिक नेचर ऑफ स्टंग, अपने काटने के जो उसका बेसिक नेचर था, उसका स्वभाव था, उसके कारण वो 2 बार नीचे गिरा। क्वेश्चन नंबर 4, वॉज द स्कॉर्पियन फाइनली सेव्ड,
स्कॉर्पियन को क्या लास्ट में अंत में बचाया गया? आंसर होगा यस, द स्कॉर्पियन वॉज फाइनली सेव्ड। हाँ, स्कॉर्पियन को लास्ट में बचाया गया। यस, द स्कॉर्पियन वॉज फाइनली सेव्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई, दैट इज क्वेश्चन आंसर। Question 1. What did the Sant see while bathing in the river? संत ने बात करते समय क्या देखा, नहाते समय नदी में क्या देखा? आंसर होगा द संत सॉ ए स्कॉर्पियन। संत ने एक स्कॉर्पियन को देखा, एक बिच्छू को देखा। नेक्स्ट है हमारा आंसर इज द संत सॉ अ स्कॉर्पियन। संत ने स्कॉर्पियन को देखा। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट हैपन एज द संत पिक्ड अप द स्कॉर्पियन? क्या होता है, क्या हुआ जब संत ने स्कॉर्पियन को पकड़ा, साधु ने उस बिच्छू को पकड़ा? आंसर लिखोगे द स्कॉर्पियन स्टंग द संस हैंड। द स्कॉर्पियन स्टंग्स द स्कॉर्पियन स्टंग द संस हैंड। Next question is question number 3. How did the Sant finally save the scorpion? Finally लास्ट में उसे कैसे बचाया? स्कॉर्पियन को संत ने किस तरह से बचाया? आंसर होगा बाय यूजिंग अ लॉन्ग स्टिक। संत फाइनली सेव द स्कॉर्पियन बाय यूजिंग, आई रिपीट अगेन, बाय यूजिंग अ लॉन्ग स्टिक। एक बड़ी डंडी का यूज़ करके उसने स्कॉर्पियन को बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द पिलग्रिम आस्क? जो तीर्थयात्री था उसने क्या पूछा, क्या कहा? आंसर इज द पिलग्रिम आस्क्ड दैट इफ द स्कॉर्पियन स्टंग The pilgrim asked that if the scorpion stung you twice, then why? The pilgrim asked that if the scorpion stung you twice, then why did you save it? वो तीर्थयात्री कहता है इफ़ द स्कॉर्पियन, अगर बिच्छू ने आपको 2 बार काटा तो फिर भी आपने उसकी लाइफ क्यों सेव की? ये प्रश्न वो उससे करता है। आई रिपीट दिस क्वेश्चन आंसर वंस अगेन। द पिलग्रिम आस्क्ड दैट इफ़ द स्कॉर्पियन स्टंग यू ट्वाइस, अगर स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने आपको 2 बार काटा, देन वाई, फिर भी, डिड यू सेव इट, फिर भी आपने क्यों उसे बचाया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा एक्सरसाइज एफ, दैट इज ऑल्सो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द इंसिडेंट ऑफ सेविंग द स्कॉर्पियन बाय द संत। वो इंसिडेंट, वो घटना हमें एक्सप्लेन करनी है जिसमें जिस तरह से संत ने स्कॉर्पियन की लाइफ सेव करी। तो आंसर होगा हमारा फर्स्टली, संत picked up the scorpion but the scorpion stung in his hand. This process was repeated again. At last he saved it by using a long stick. I repeat again. Firstly, Sant picked up the scorpion but the scorpion stung in his hand. सबसे पहले वो संत जो है उसे पकड़ता है और लेकिन वह उसे उसके हाथ पर काट जाता है, और इसी प्रोसेस को वो दोबारा फिर दोहराता है एट लास्ट, और आखिर में वह एक लंबी छड़ी का यूज़ करके उसकी लाइफ को बचाता है। फर्स्टली, Sant picked up the scorpion but the scorpion stung in his hand. The process was repeated again. इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराया गया। At last, आखिर में he saved it, उसने उसे बचाया by using a long stick, एक लंबी छड़ी का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. What explanation was given by the Sant for saving the scorpion? जो संत था उसने क्या वर्णन दिया उसकी स्कॉर्पियन की लाइफ को सेव करने का? तो आंसर होगा इफ़ द स्कॉर्पियन कैन नॉट गिव अप इट्स नेचर, देन वाई शुड संत गिव अप हिज नेचर? आंसर बोलता है कि अगर स्कॉर्पियन अपना नेचर नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना नेचर क्यों छोड़ूं? क्योंकि स्कॉर्पियन का नेचर है काटने का और संत का नेचर है दूसरों की मदद करने का। तो
अगर वो अपनी नेचर नहीं छोड़ रहा, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूँ। तो आई रिपीट दिस आंसर वंस अगेन, इफ़ द स्कॉर्पियन कैन नॉट गिव अप इट्स नेचर देन वाई शुड संत गिव अप हिज नेचर। Okay dear student, learn these all exercise of lesson 6, the sun and the scorpion. Learn all the question answer fill ups and other exercise word meanings properly. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing shortcut key for S7 revision. Now we start shortcut keys. फर्स्ट है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल की स्पेलिंग होगी यहाँ पे CTRL, कंट्रोल प्लस एस। ये क्या होगी इसकी? सेव की। सेव की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ, CTRL, कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ किसकी शॉर्टकट की होगी? ओपन की। कोई भी नई फाइल ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड किसकी होगी? फाइंड की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस एफ, CTRL प्लस एफ। क्या होगी इसकी शॉर्टकट की? ये फाइंड। नेक्स्ट है कॉपी, कंट्रोल प्लस सी। कॉपी की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट है कट। कट की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स हो गई कट की। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी हो गई प्रिंट की। कंट्रोल प्लस पी हो गई प्रिंट की। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी हो गई शॉर्टकट की पेस्ट। कंट्रोल प्लस वी हो गई पेस्ट की। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ए, CTRL प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए क्या हो जाएगी? सिलेक्ट ऑल। ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट है न्यू फाइल ओपन करने के लिए, कोई भी न्यू फाइल ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड की क्या होगी? अंडू। कंट्रोल प्लस जेड किसकी होगी? अंडू की। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वाई, CTRL प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई की क्या होगी? रीडू या रिपीट। रीडू या रिपीट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी की क्या हो जाएगी? बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी किसकी होगी? बोल्ड। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू किसकी होगी? अंडरलाइन। किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई क्या होगा? इटैलिक। कंट्रोल प्लस आई की होगी इटैलिक। ये दोनों तरह से आ सकती है, जैसे इटैलिक इक्वल कंट्रोल प्लस आई या कंट्रोल प्लस आई इक्वल इटैलिक। So all students do this shortcut key very carefully in your fair notebook. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा दूसरी में मैं करा रही हूँ पाठ 7, सच्चे मित्र। ये पाठ मैं आपको कल पढ़ा चुकी हूँ और इसके कुछ प्रश्न मैंने करा दिए थे, बाकी बचे हुए प्रश्न मैं आज करा रही हूँ आपको। तो पहले हम शुरू करेंगे शब्दार्थ। प्रेम, स्नेह या प्यार, उपहार, भेंट या तोहफा, संकोच, लज्जा या शर्म आना, द्वारपाल, पहरेदार, चकित, हैरान, सिंहासन, राजा की गद्दी, विदा, चले जाना, जान छिड़कते थे, बहुत प्यार करते थे। एक बार फिर से देखिए। प्रेम, स्नेह या प्यार, उपहार, भेंट या तोहफा, संकोच, लज्जा या शर्म आना, द्वारपाल, पहरेदार, चकित, हैरान, सिंहासन, राजा की गद्दी, विदा, चले जाना, जान छिड़कते थे, बहुत प्यार करते थे। पहला प्रश्न हमारा है, कृष्ण कहाँ के राजा थे? इसका उत्तर होगा
कृष्ण द्वारिका के राजा थे। क्या उत्तर बताया मैंने? कृष्ण द्वारिका के राजा थे। आगे है सुदामा कृष्ण के लिए क्या उपहार ले गए। सुदामा कृष्ण के लिए क्या उपहार ले गए? इसका उत्तर होगा सुदामा कृष्ण के लिए चावल उपहार ले गए। सुदामा कृष्ण के लिए चावल उपहार ले गए। आगे है घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा। घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा? इसका उत्तर होगा घर पहुंचकर सुदामा ने अपनी झोपड़ी के स्थान पर सुंदर महल देखा। घर पहुंचकर सुदामा ने अपनी झोपड़ी के स्थान पर सुंदर महल देखा। अगला प्रश्न है सुदामा की पत्नी ने सुदामा से क्या कहा। सुदामा की पत्नी ने सुदामा से क्या कहा? इसका उत्तर होगा सुदामा की पत्नी ने सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने को कहा। क्या उत्तर बताया मैंने? सुदामा की पत्नी ने सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने को कहा। आगे है सुदामा का मन डामाडोल क्यों हो रहा था। इसका उत्तर होगा सुदामा सोच रहा था कि श्री कृष्ण ने उसे नहीं पहचाना। तो सुदामा सोच रहा था कि श्री कृष्ण ने उसे नहीं पहचाना। तो बच्चों ये मैंने प्रश्न आपको करा दिए है। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।